Yeah. So Bank of Maharashtra, sir, any stop loss on this stock? Stop loss, actually, buying price is what? 20. He has bought it at 20. We can use the stop loss of 14. 14 rupees. 14. Yeah, 14. Okay. So the stop loss again from here, it is. So can he trail the stop loss at cost, because 20 is a buying price and 26 is current market price? Yeah, he can. Because 14 would be a deep loss for the counter. Coming on to next stock, this is again a stock which is trending up. Varun Beverages. The stock has been an outperformer because market had been down, but this stock had not come down that much, and it is again inching higher. So Varun Beverages, the stock has been bought at a very lower level of around 600 rupees, now trading around 1393. The investor just wanted to ask whether he should hold this stock or can quit this at these levels, can book profit. The stock is Varun Beverage. Okay. At what price he bought? 600, around 600. 600. He's already in good profit now. Yeah. The money has already been got doubled. Then what he wants it? Sir, basically the fundamental story of the stock is very good, and the stock is already a multi say actually has made 1x money for him. That is rather 2x money for him, but he wishes to hold it because he is a fundamental investor, wants to stay with the stock. Just wanted to understand whether stock is showing any weakness, or is it like going, say, in the trend? The stock will carry strength beyond 1450. If the stock costs 1450, then it has a good strength. Else, the stock will fall down to, already it has given a sell signal, it may fall down to 1300. Okay. So I think the investor can hold the stock with any specific stop loss, because 1300 could be a very near stop loss, and he may stop out and the stock may again go up. Now if you want to keep it continuing this stock, then his stop loss can be 1250. 1250. Okay, fine. The next stock that has come up, sir, is Policybazaar. And Policybazaar currently, after the IPO, it has come down very sharply. It has reached a level of around like 375. Now trading around 600. 593 is the precise point. So the position actually was taken in an IPO, and investor wants to understand whether the IPO price would be coming or not. Now it seems actually, it may fall down. The stock is already made a high of, now they made a high of 655 recently, and it is showing a weakness. So it may, on Monday, I think tomorrow, the stock will start falling. If it crosses 620, then his uptrend will continue. Else this will fall down, and the falling price up to maybe 450. Okay. So I think the stock is rather in a consolidation zone. It may again come down till 450 and then move up. But stock has made a bottom around like 370, 75 levels. And I think that level may not be seen. One can actually see a lower level, and again the stock can go up. That is what I understand. So yeah, the investor can stay invested because IPO price was very high. If he wants to average, sir, any levels to average? Yeah, you can make it average around 450, 460. Okay, fine. So, sir, these were the queries that were there on the stock. There was one query on mutual funds. I'm just taking that particular query as well. So that query was basically from one of the investor who wanted to understand whether the SBI dividend yield fund, whether that is a good fund or not, and whether he should invest so that he can take an SWP later. Now, what I understand from this particular fund, I'm just seeing the fund. So this fund was actually launched in the month of February and listed very recently, that is in the month of March. This fund actually does not reflect any expense ratio as of now, what kind of expense ratio it would be charging. There is no, particularly, there is no very
deep history of this fund because it has been recently launched. But I just went through some peer comparison. I hope the screen is visible. So, Yeah, sir, visible. yeah. So basically, I just did a comparison of what the peers had been doing. So I saw that in a very near term, obviously the market has been say going up and down. So very near term, the returns are very say good. There are 2.5% return in this particular fund. But I feel that this is very narrow idea. As far as the fund is concerned, this is very narrow idea because dividend yield stocks may or may not do good. This also has been categorized as very high risk fund. So I feel that this is a thematic fund, and themes at times they do very well, and at times they do not go with the market sentiment. So unless I think the investor is very much say into it that he has to buy this fund, he should actually skip this idea of investing in this thematic fund. He can take a flexi cap fund for that matter, because flexi cap gives the fund manager also various options to invest across various stocks, various themes, various market caps. So I think without say being biased, the fund manager can invest, and this is my thought that he should invest in a fund which is actually a flexi cap fund. Now, as far as SWP is concerned, SWP is actually removing the capital out. So it is nowhere kind of like you are taking out the profits. It is actually removing the capital out. So taxation part in SWP is better. Dividends, if someone takes dividend out, dividends are taxable. So I personally feel that it should be like that one should do an SWP in any of the funds after at least say 5 years time span. So he can build up a capital, and that SWP that is coming out, his actually money is coming out, and the remaining money is also fetching good return. So there are a lot many flexi cap funds offering returns in and above like 14-15%. And thematic funds, if you just compare the return as well, the maximum return in say 10 years span of I just no, I think just a moment. So on screen, I just wanted to check this whether peer comparison. Yeah, peer comparison is here. So if we see the peer comparison here, what we see is various funds delivering returns, trailing returns. If we see, so the 7 year return or 5 year return of other funds is 11%, 14%, 12%, and 10%. So highest return is 14%, and that is of Templeton India Equity Fund. So this is similar fund, and the highest return is 14%. 7 year return is higher again of Templeton, that is 16.565, and 10 years return is 15.99, so around 16%. So I think this fund you can actually choose say actually listed funds which are already there in the market. If you don't say buy something of Templeton, but all said and done, I feel that FlexiCap gives you more, say, advantage over these kind of funds. The expense ratio and everything in these kind of fund is again similar to FlexiCap. But as I said, FlexiCap gives you more flexibility. And this fund is a recent one, so not much history about it is available. And I think that is the reason it will be difficult for me to comment on the performance of this fund. But SWP as an idea can definitely be done. So this is one more thought. And we have a session on candlestick. But before that, there was a query on cryptos, that whether one can invest in cryptos or not. An investor actually wanted to take some money out and invest through various exchanges in cryptos and keep it for long term. So the query asked was, what is the tax say impact on cryptos while investing there, and what is say way out to do it. So my answer to that is basically RBI has liberalized scheme wherein it allows like around like two lakh $50,000. You can actually take out that kind of money outside without taking any permission of RBI, and that is LRS, that is liberalized scheme of say taking the money out. You have to just bear a TCS, that is 5% TCS currently, and after July, I think it will be 20%. So one who is taking out the money has to do it through authorized dealers, ADs, and authorized dealers can be bankers, can be say any other professionals, some other firms as well. And uske through you can take the money out, and actually after taking the money out, you can invest there through various exchanges. Taxation, there is no tax. Actually, there is no benefit of tax when there are losses in cryptos. So losses जितने भी आएंगे उसका कोई भी set off नहीं मिलेगा. So मान लीजिए if you have incurred say
100 rupees of loss and 200 rupees of profit. So your 100 rupees loss will not be say adjusted or set off. You'll be having to bear tax on rupees 200, which is a profit that you'll be getting, and that too at a maximum marginal rate. So I think crypto's investment for that matter is not very much say in vogue, because obviously the taxation is very high and you have to do lot many compliances while taking the money out. So that compliances need to be adhered to. And in India, there is one such exchange. I'll not name it, but you can invest through INR in cryptos through that exchange. So that could be one way out. And so coming on to the say session, GAN session today, the GAN Satra, we actually had it on bullish candlestick. So I'm just running the presentation. Sir, one more thing just I want to say. Please, Yeah. Sorry, I'm interfering. Somebody has raised a query on Kotak Bank. I have given a view. Further, to add to that view, Kotak Bank, he can hold the stock with a stop loss of 1730. That is on EOD basis. 1730 is lower side. If it break that figure, then the stock will fall down. Otherwise, the stock will continue to go up. Sir, This is actually, the query was on the short side. The trader has actually shorted the stock and shorted it at lower level. So he just wanted to understand, currently the stock is trading at around like 1760, 60, 61 kind of levels. And he just wanted to understand whether his shorting price would be like he can achieve that price, or will it be going more higher? So I think from that angle, you can just answer 1730 from the buy side. If you are saying that if it is breaking, then it will be coming down. So that is a good news for the seller who has actually shorted it at around like 1710. So if his price is coming, I think that is a good news for him. That was the next. Again, he can use this stop loss. Already he has sorted. Then use this stop loss 1780 or make it hedged. In either thing, he can do one. So hedging it. So sir, any ideas on how to hedge it? Yeah, he can hedge it. Now he has already incurred a huge loss. Then he should better to arrest the loss immediately with a calendar spread. Okay. He should make a calendar spread, and at the right time, he should quickly get out from one position. So as far as I understand, what sir is saying is calendar spread. Matlab, you can actually buy another month's future. So currently, if you are shorted in a future which is current month, you can buy another month's future and lock your losses. And at the right point of time, you can actually exit either of the positions at a level which is a resistance or a support level. So that is the idea. Now coming on to the presentation, sir. So bullish candlestick pattern. Friends, I'm just covering this presentation here, and I hope you'll enjoy this. So basically, sir, candlestick, we had been discussing this in our technical analysis class. The candlestick actually gives you the entire picture. All other stock charts may or may not give you the complete picture, but candlestick is one such pattern which actually gives you entire picture. So a type of chart which represents open, high, low, and close of specific script for specific defined period. So period you have to define. It can be a 5-minute chart. It can be a 10-minute chart. 10-minute means what? So if the market is starting at 9:15, so till 9:25, it is 10 minutes. So you can actually plot that price movement of a stock in that 10 minutes kind of time frame. So time frame you have to select. And once you select the time frame, obviously the candlestick will get the formation will happen, and it will be according to the time frame that you selected. So if you can select say 5 minutes, it will be 5-minute candlestick. Every 5 minutes, one candlestick having these kind of things, open, high, low, close, would get covered. If you are selecting say 15 minutes candlestick, then 15 minutes that particular price movement will be captured. So candlesticks is actually giving you a complete picture of the open, high, low, and close. And there can be two kind of candlesticks. So a candlestick, basically the price is rising higher. The candlestick would be here, if you see here, a green candlestick, which is called a bullish candlestick. So open and close, there is a difference. Close is actually higher than the open. When the close is higher than the open, it is a bullish candlestick. And there could be a wick, which is like, this is a wick. If you see on the screen, this is a wick, which is showing you a high. And there is a wick on the downside as well, which is showing you a low. So basically, there could be price movement, and that is getting captured here. Similarly, there's a bearish candlestick where the open is high and the close is low.
it is a red candlestick. So you can actually put in colors that you want to. आप आपके हिसाब से colors डाल सकते हैं इसमें. But what you need to understand is that on screen, if you want to identify this, so आपको एक color एक particular bullish candlestick के लिए अलग लेना चाहिए, and bearish के लिए आपके हिसाब से आप अलग set कर सकते हैं. और उसमें you can actually plot this. So this is the bullish candlestick, bearish candlestick. This is the real body. So body is the price movement that has happened, and I think this movement tells you all, because if you watch the candlestick, the formation of the candlestick, you'll understand that there is actually a war going on the screen where there are buyers and as well as sellers. Buyers want to buy it at any point of time at any price, and sellers want to push it down and take the money out. So this is something which is very interesting to see on screen. And when it happens, the formation of this particular type actually happens. Sir, your thoughts on candlestick, the basic part. We'll be covering the bullish candlestick in detail, couple of candlestick patterns after this. Yeah, please. Fine. You have already explained in a very lucid way. A candlestick, that means it is very important that a person need to maintain a particular time frame. If he wants to continue, he has to maintain a particular time frame. In multiple time frame, it is very difficult to work. After getting some command over the patterns and charts, etc., then he can make it. But candlestick pattern is one of the best pattern, best charts in the trading segment. But particularly so far technical analysis is concerned, a person has to be a very good command over the candles. Yeah, right. Please. Right. So bullish candlestick pattern, we are just covering the theoretical part as well here. When a script closes above its opening price, it forms a bullish candlestick. There are several candlestick patterns to observe while trading for reversal and continuation trades. We'll cover 4 reversal and 2 continuation pattern in this session. So basically, we are trying to cover certain candlestick pattern, which will actually, if you try to spot it and if you try to observe it, these are the powerful candles, powerful patterns, after which the movement actually continues in that direction. So there is a reversal pattern, there is a continuation pattern. मतलब क्या हुआ कि if the market is falling and since get formed on the screen in these types like hammer, bullish piercing, bullish engulfing, or morning star, these are powerful patterns from where the market can actually reverse, or the stock particular, if you are watching a stock, the stock can actually reverse. So these are certain patterns which are very powerful patterns when it comes to reversals, and there are certain patterns which are very powerful when it comes to continuation. So if you have to just understand whether the market is trending up or trending down, or it will reverse, these patterns will actually help you out. So now covering these patterns in little detail here. Sir, any thoughts on the earlier slide, this particular slide, or shall I move forward? Yeah, please continue. Right. So here we are talking about the bullish hammer. Now hammer एक ऐसा pattern है, it is actually अगर आप हथौड़ा देखते हैं, so if you just visualize the हथौड़ा, the hammer, it is of this particular particular shape. So what happens here is the market is falling. There is a downtrend here, and all of a sudden this particular pattern gets formed. And when this pattern gets formed, you actually observe that the market then, or rather particular stock, if you're watching a stock. So we'll actually talk about Nifty, not to digress or not to get confused. If Nifty is falling, and if you see there is this particular pattern being formed on a particular chart that you actually observe. So if you are observing a 15-minute chart, तो 15 मिनट में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इस तरह का अगर पैटर्न कहीं बनता है, after that you may see that the market will definitely go up. So hammer is one of the very which is very powerful patterns. और जब भी particular chart pattern पे ये form होता है, तो वहां से reversal जो हमको देखने मिलता है. So bullish hammer is single candlestick pattern which indicates that the script or market, if we are talking about index, so Nifty might have reached the bottom and it's ready to reverse from that level. अब आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मेशन अगर हो रहा है 15 मिनट्स पे, सो इज इट अ गुड फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट मार्केट रिवर्स होगा, ये जरूरी है क्या? सो एक्चुअली जिस तरह के टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, उस तरह के टाइम फ्रेम में उसके लिमिटेशंस कुछ ना कुछ आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रिवर्सल एज वेल. सो इफ यू आर सीइंग दिस पैटर्न ऑन अ 15 मिनट्स काइंड ऑफ से कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सो वहां से आपको रिवर्सल भी मिलेगा, तो छोटा रिवर्सल मिलेगा बिकॉज टाइम फ्रेम इज लिमिटेड 15 मिनट्स. यू सी दिस पैटर्न ऑन ए 1 hour चार्ट,
द टाइम फ्रेम इज अ बिगर टाइम फ्रेम, सो ऑब्वियसली उसके बाद में उसका जो रिवर्सल होगा थोड़ा बड़ा रिवर्सल हो सकता है. एंड इफ यू सी दिस पैटर्न ऑन ईओडी, दैट इज एंड ऑफ द डे काइंड ऑफ चार्ट्स, द रिवर्सल कुड बी मोर पावरफुल. सो आपको ये बहुत जरूरी है समझना कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम में किस तरह का उसका इन्फ्रेंस जो पैटर्न है उसका लेना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्चुअली टेक योर ट्रेड्स. You can also do this while investing. So if this formation is happening on an end of the day chart, and you are a mid-term investor, short-term investor kind of, or even a long-term investor for that matter, so आपको ये थोड़ा बड़े पीरियड में इसका रिवर्सल आपको दिख सकता है मार्केट में. अगर आप इसको वीकली पे आइडेंटिफाई करते हैं तो और बड़े लेवल्स पे आपको दिखेगा. सो जस्ट टू शो यू सर्टेन थिंग्स ऑन द चार्ट इटसेल्फ, वी आर हियर on trading view screen, and we actually have to say, just I'll try to put it here for you, the Nifty chart. So Nifty, so this is the Nifty chart, and just to take you through the screen. अब इसमें कहीं हमको हैमर आइडेंटिफाई हो रहा है क्या वो देखना है. सो आई ट्राई टू पुट दिस फर्स्ट ऑन आर्ली चार्ट एंड देन ऑन अ डेली पैटर्न. why we just have to understand कि अगर आर्ली में हुआ तो क्या इम्पैक्ट आता है और डेली में अगर होता है तो कितना इम्पैक्ट है. सर इसमें आपको कहीं हैमर कहीं स्पॉट हो रहा है क्या? ट्रेडिंग थोड़ा सा मेरे के लिए थोड़ा सा चार्ट जो काफी छोटा दिख रहा है, पर हाँ, जस्ट मैं जस्ट आपके चार्ट से बता रहा हूँ. ये जो हाँ, टाइम फ्रेम है, 1 घंटे टाइम फ्रेम मैं ले रहा हूँ. हाँ. आप अगर देखते हैं 29th को एक हैमर का इंडिकेशन है. 29th of what, sir? 29th of March. And 29th, the time is 1 o'clock. sorry, Time is 1 o'clock. 1 बजे. 1 बजे का पैटर्न यहाँ पे सर. इसमें तो मुझे पैटर्न में एक एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है. इट इज नॉट अ दिस थिंग. अच्छा, हैमर मेरे नहीं. अच्छा वो टाइमिंग का जो टाइम फ्रेम में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है. जो टाइमिंग का रहता है, मैं जो यूज करता हूँ उसका जो राउंड फिगर है वो 12 से 1, 1 से 10, 2 से 3 ऐसे चल रहा है. और ये जो आप दिखा रहा है ये शायद मेरे को लगता है कि 12:15, देन 1:15, 2:15 ऐसा दिखा रहा होगा. राइट, राइट. तो सब फर्क आ रहा है, बट हमेशा चीजें वही मिलेगी आपको. पहले टाइम का फर्क पड़ेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट चार्ट फॉर्मेशन होता है. जो जिसको फॉलो करता है उसी को फॉलो करना चाहिए. मुझे यहाँ पे सर हैमर तो नहीं दिखा, लेकिन दूसरे चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो रहे. आई विल ट्राई टू सी वेदर देयर इज एनी हैमर दैट इज कमिंग अप. अगर वीकली आता में है, जाइए. ये एक जो दिख रहा है, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ डोजी है, हैमर नहीं है. हाँ, सर देन वो यहाँ पे एक बन रहा वीकली. है, दैट इज अगेन मॉर्निंग स्टार एक बन रहा है. आगे अभी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार आ रहा है. हाँ. सो we'll just try to identify, in case we are trying to we basically trying to spot a hammer. In case we are trying to get say, if we find it, we'll definitely say be able to visualize what is happening. We can actually have a visual view of altogether what has happened after that particular pattern. So hammer हमको मार्केट अगर डाउन है और डाउन मार्केट में अगर हैमर बनता है, दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न. एंड इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट, नथिंग लाइक इट. सो यहाँ पे एक बना है हियर, यहाँ पे एक बना है सर, ये रहा. सो दिस इज द वन. इफ आई हैव द ऑप्शन, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसमें अगर इसको नोट कर सकता हूँ. ये बना यहाँ पे, ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली एन हैमर. ये हैमर बनने के बाद मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर किया, थोड़ा मार्केट नीचे भी आया, लेकिन ये जो लेवल आया था मार्केट का 17,465, ये लेवल पे, इसके बाद में ये जल्दी से नहीं आया और इसने बहुत लंबा मूवमेंट इस तरह से ऊपर की तरफ दिया. सो अगर मैं नोट को हटा देता हूँ, जस्ट so here what we see is market has given a good view, good actually upside move from here. और ये मार्केट ने हैमर बनने के बाद में अच्छा ऊपर की तरफ ये जा रहा है. जस्ट मूवमेंट, जस्ट रिमूव दिस. फिर मार्केट ने नीचे की तरफ बाद में मूवमेंट किया, बट इट वाज अ गुड मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हैमर ऑन द अपसाइड, right? So now we are coming on to the presentation once again. So bullish hammer, how to identify it? In this pattern, a wick of the candle will be 2 times bigger than its body. So body जो है ये real body है, और इसका जो wick है नीचे का
ये इस बॉडी से 2 गुना बड़ा, मतलब विक जो है 2 गुना बड़ा है बॉडी से, इट शुड बी फॉर्म। सो हमने जो देखा था पैटर्न, उसमें अगर हम लोग फिर से एक बार जाके रिविजिट करें, सो विल रियलाइज कि हमने जो देखा था वो एक्चुअली उस तरह से था कि नहीं, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना था। तो हाँ, ये हमने, ये कैंडल स्टिक थी। अगर आप देखेंगे तो उसकी बॉडी छोटी है और उसका विक उससे एटलीस्ट 2 गुना बड़ा है। सो ये समझ में आ रहा है कि एक हैमर बना हुआ है। ये भले रेड कैंडल है, बट इट इज एक्चुअली रेड या ग्रीन, कोई जरूरी नहीं कि रेड या ग्रीन कोई एक ही होगा। इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन एज वेल, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एक प्राइस रिवर्सल जो है वहां से आने का चांस बन जाता है। इस तरह से जब ये बुलिश हैमर बना, देखिए चार्ट यहाँ पे एक आपको डिपिक्ट करने के लिए भी। सो यहाँ पे जो विक था वो बॉडी से 2 गुना बड़ा था, और जब ये आया तो वहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया। हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं, बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग सर, मैं अगर बात करूं बुलिश बुलिश पियर्सिंग की, तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और सडनली एक दिन कभी ऐसा बनता है कि एक कैंडल जो है वो ग्रीन बना, और जो रेगुलर रेड कैंडल्स बन रहे हैं मार्केट के डाउन ट्रेंड में, उस ग्रीन कैंडल ने उसके 50% के ऊपर जाके बंद दिया। So if this particular green candle closes more than 50%, then this pattern is a bullish piercing pattern. And normally ये होता ये है कि जिस दिन ये बनता है तो उस दिन मार्केट पहले 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 नीचे खुलता है। नीचे खुल के नीचे खुला मतलब जैसे ये रेड कैंडल था, यहाँ पे क्लोज हुआ रेड कैंडल। दूसरे दिन मार्केट जब खुला तो मार्केट यहाँ खुला नीचे, गैप डाउन बोलेंगे, और वो वहां से पहले नीचे गया, और फिर उसने पूरा पोजीशन रिवर्स करके इसके 50% से भी ऊपर जाके बंद दिया। एक लेवल पे तो और ऊपर चला गया था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज देते वक्त तो 50% से ऊपर का क्लोज दिया। सो दिस इज एक्चुअली पियर्स दिस कैंडल, एंड इसकी 50% जो रियल बॉडी है उसके ऊपर वो जाके बंद दे रहा है। सो दिस इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ बुलिश पियर्सिंग कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये जहां जहां पे बनता है निफ्टी 50 में, जब ये बना था बीच में, हम लोग रियल टाइम चार्ट्स को भी जाके एक बार देखेंगे, लेकिन ये भी रिसेंट का ही एक पैटर्न है। 17,605 हाई, 17,606 लो और क्लोज। सो बेसिकली यहाँ पे ये चल रहा था पैटर्न, एक नेगेटिव पैटर्न चल रहा था। एक पर्टिकुलर डे पे उसने नीचे खोला मार्केट ने, वहां से नीचे गया, और फिर ऊपर आके 50% से ज्यादा ऊपर का क्लोज दिया, और फिर वहां से अप ट्रेंड धीरे धीरे फिर से शुरू हो गया। सो बुलिश पियर्सिंग आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे मार्केट में। वो पैटर्न्स रेगुलरली होते रहते हैं। हैमर थोड़ा सा एकदम ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, वो होना बहुत आसानी से नहीं होता है, लेकिन जब भी होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मार्केट देगा। लेकिन हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये लेकिन 50% पे ही जाके अटक गया। यहाँ पे उसने 50% से ज्यादा का क्लोज दिया है, लेकिन इसने ओपनिंग नीचे नहीं दिया है, ये सेम लेवल पे ओपनिंग दिया है। सो नॉर्मली बुलिश पियर्सिंग इज समवॉट कि भाई जहाँ पे वो ओपनिंग जो है वो नीचे देके फिर बाद में ऊपर की तरफ बढ़ता है। सो दिस इज आरली चार्ट दैट आई एम लुकिंग एट। नीचे के मार्केट अभी वैसे भी मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ क्लियर नहीं है, तो मार्केट ने जब जब इस तरह से, अभी बहुत सारे अपने को पैटर्न्स दिखने वाले हैं जो इस तरह के पैटर्न्स है कि मार्केट नीचे के ट्रेंड में है और फिर बाद में उसने ऊपर किया। सो आई थिंक स्क्रीन पे मुझे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लग रहा है, बट लेट मी चेक। अगर आसानी से मिल जाता है तो वी कैन एक्चुअली go and see that. If not, while doing, say, while getting through other slides, we can actually come back and see whether we are able to spot that particular pattern. रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न में इस टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है। रिलायंस का 5 अप्रैल, 5th of February. Okay. 5 अप्रैल, 5th 5 of अप्रैल April. हाँ Okay. करेक्ट। Just a जो moment. चार्ट बना है ये बना है 12 बजे। So मार्केट Reliance नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, 15 नीचे मिनट गिर पे रहा है, जाके नीचे गिर रहा देखना है। पड़ेगा। 15 मिनट की बात करें सर। जी जी। ओके, सो 15 मिनट स्टार्ट 5 अप्रैल को। करीब 12 बजे। एक मिनट, मैं पहले इसको डेली पे लेके आ जाता हूँ, एंड इट वुड बी इजियर टू। सो मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा, so basically here, fifth, so we have to come back a lot.
You have to reset the chart as per today's then. 1 minute. So I have moved out a little. मैं एक बार सर इट इज अप्रैल में बोल रहे हैं ना आप, राइट? हाँ हाँ हाँ, 5 अप्रैल 5 अप्रैल 12 बजे। So 6 अप्रैल 5 अप्रैल, okay, ठीक है. So I have to just put this as 15 minutes once again. Yeah. 15 minutes and अप्रैल 5. Okay. अप्रैल 5 में 12 बजे, राइट राइट, और नीचे थोड़ा सा, और नीचे, यस, ये जो ग्रीन बना हुआ ये ऑलरेडी उसको, ये सर लेकिन एनगल्फिंग हो गया ना, दिस इज हाँ एनगल्फ. एंगल्फिंग है। नहीं एनगल्फिंग नहीं, बुलिश पियर्सिंग की बात कर रहे सर. हाँ ये वाला हो सकता है, दिस वन. मैं इसको नोट कर देता हूँ. लेकिन इसमें ट्रेंड एग्जैक्टली डाउन नहीं है. ये एक बना है जो ये दो कैंडलस्टिक्स है. ट्रेंड अभी ऊपर के तरफ से नीचे आया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना चालू किया. ये कैंडलस्टिक नीचे बना के फिर उसने पियर्स करके ऊपर लेके गया. बट सर ये बॉटम पे नहीं बना, दिस इज नॉट ऑन द बॉटम. यस, बॉटम में भी नहीं बना। चलिए, आई थिंक विल मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन एंड विल एक्चुअली try to spot this again. एक minute, I just remove this. Yeah. So I clear the annotations here. हाँ. So bullish engulfing की बात करें, तीसरा पैटर्न. Bullish engulfing is a candlestick, dual candlestick pattern, and this basically indicates that script might have reached the bottom and bears have shown strength in last candle, but bulls have become active in next trading session and bull dominates the bears. So bulls and bears की फाइट चल रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और एक लेवल ऐसा आता है जहां पे रेड कैंडल्स रेगुलरली बनते जा रहे हैं, लेकिन एक कैंडल बनेगा ग्रीन और वो ये रेड कैंडल के ऊपर जाके बंद करेगा, उसको पूरा एनगल्फ कर लेगा, उसको कवर कर देगा. सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं रिवर्सल पैटर्न. हैमर की तरह का पैटर्न, एक रिवर्सल अगर आप बोलेंगे तो दिस इज एनगल्फिंग पैटर्न विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और नॉर्मली मार्केट में ये सब पैटर्न हम आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं कि अगर हमको एंट्री करनी है प्रॉपरली और एग्जिट्स करना है, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंट्री पॉइंट. सो हैमर जब बनता है तो हैमर के बाद का जो कैंडल है उस पर आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो कैंडल को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हैमर बना. सिमिलरली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर हम बात करें तो ये पहले बनने देना पड़ेगा और उसके बाद के कैंडल पे, मतलब इट विल नॉट बी दिस कैंडल वेयर यू विल बी टेकिंग द पोजीशन, आप नॉर्मली ये कैंडल पे पोजीशन लोगे. सो बुलिश एनगल्फिंग इज अ पैटर्न व्हिच एक्चुअली गिव्स यू वेरी स्ट्रांग सिग्नल दैट मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स और यहाँ से फिर नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ बनना चालू होगा. अगर ये नीचे बन गया, ये बनने के बाद अगर ये नीचे बन गया और इसमें भी आप एंट्री कब करोगे, जब ये बंद होने को आएगा. सो इफ यू आर वॉचिंग अ 15 मिनट चार्ट, ये पहले 15 मिनट में कैंडल बना, दूसरे 15 मिनट में जब ये वापस कैंडल बन रहा है और जब 15 मिनट में बंद हो रहा है, तो बंद होने के आसपास में या फिर इस लेवल पे आप जाके पोजीशन बनाओगे एंड देन यू विल वॉच द मार्केट गोइंग अप. सो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेट एंड वॉच. और मार्केट में हमेशा कहा जाता है कि भाव भगवान है. तो भाव भगवान क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली भाव जो है, एक्चुअली कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है भाव, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरह की मूवमेंट हो रही है. सो दिस मूवमेंट इज एक्चुअली कैप्चरिंग द प्राइस एंड टेक्निकल एनालिसिस इज मोर अबाउट प्राइस एंड वॉल्यूम्स. सो अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस देखना बहुत जरूरी है, साथ साथ में हमको वॉल्यूम भी देखना चाहिए कि वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है क्या. अगर ये कम वॉल्यूम के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था और यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो हमको थोड़ा स्केप्टिकल होना पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअली कंटिन्यू करेगा कि नहीं. लेकिन प्राइस और वॉल्यूम अगर आप दोनों को सिंक्रोनाइज करके देखेंगे तो obviously you will actually watch this happening on the screen. How to identify this pattern? A long red candle will form and immediately bulls will get active and engulf fully the last red candle. Green candle will open down at that last candle and you will, just a moment. So we'll open down that last closing and will close above the last open. So basically ये कैंडल बन चुका है, उसके बाद में कैंडल बना. ये कैंडल बनते वक्त इसने नीचे चालू किया, नीचे चालू करके धीरे 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 करते करते ऊपर आया और इस कैंडल के भी ऊपर निकल गया. तो एंगल्फिंग पैटर्न थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंटली और इजीली स्पॉटेबल है. ये पैटर्न हमारे सामने रिलायंस का चार्ट है 15 मिनट्स का. यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रहा था और इसमें ये पोजीशन पे एनगल्फिंग पैटर्न बना. मार्केट ने ये कैंडल पूरी
बन गई, उसके बाद में मार्केट एक्चुअली खुला उसके आसपास ही, नीचे गया। और जरूरी नहीं कि मार्केट हर बार जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है कि नीचे ही खुलेगा और ऊपर जाएगा। हमको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि ओवरऑल बाकी के जो प्रिंसिपल्स है वो अगर मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर गेटिंग मैच, नॉट ऑल कंडीशंस, then we can actually consider this as a pattern which is engulfing pattern. So यहाँ पे देखिए इसने engulf किया और उसके बाद में जो मूवमेंट आई वो ऊपर की तरफ रही। तो ये जो लो था, ये लो को उसने फिर से नहीं छुआ या नहीं ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ही रहा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। ये तो 15 मिनट पे है। इससे बड़े चार्ट पे हम जब देखेंगे तो बड़े चार्ट पे हमको अगर ये पैटर्न दिखता है तो वो और लंबे समय तक कैरी कर पाए। सो सर इस पे अगर आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज। ये ऑलरेडी जितेंद्र सर ने बताया कि एक एंट्री लेवल उन्होंने बताई कि सेकंड कैंडल जब बन जाता है, एनगल्फिंग पहले एनगल्फिंग होता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनता है आप उसके बाद में पोजीशन ले सकते हैं। अगर दो जो रिस्की प्लेयर्स या उनको अच्छा एक्सपीरियंस है कैंडल के ऊपर में, तो जैसा एनगल्फिंग करता है, एनगल्फिंग का जो टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम वो काम करता है, जैसे एनगल्फिंग कंप्लीट होता है वहां से ही ले सकते हैं। वो जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो जो ग्रीन कैंडल जो एनगल्फ किया हुआ उसके नीचे जाके स्टॉप लॉस रहेगा। जो रिस्की उनका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, और जो जाके सेकंड कैंडल में जाके वो बाय कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करना है कि आप किस टाइप का ट्रेडर है, उस टाइप से आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं किस लेवल से एंट्री करूं। राइट। सो बुलिश एनगल्फिंग के बाद में हमारे जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं, उसमें एक और पैटर्न है बुलिश मारुबोजू, सॉरी बुलिश मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार। बुलिश मॉर्निंग स्टार की बात करें तो बुलिश मॉर्निंग स्टार इज 3 कैंडलस्टिक पैटर्न which is combination of one red candle, one green candle and one hammer or doji. It shows the reversal of downtrend. So basically हमने जस्ट अभी स्क्रीन पे कुछ समय पहले मॉर्निंग स्टार आइडेंटिफाई किए थे। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या, कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड जो है वो एक लेवल पे ऐसा ऐसा पॉइंट आया कि डाउन ट्रेंड अब खत्म होते दिख रहा है, मार्केट रुक रहा है, और रुक के एक प्रकार का एक डोजी बनाता है। डोजी मतलब एक ऐसा कैंडलस्टिक जहां पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा है कि किस तरफ मार्केट जाएगा। प्राइस जो है वो ओपन और क्लोज जो है बिल्कुल पास पास में है, या फिर एकदम वही पॉइंट पे है। और जब वो डोजी बनता है उसके बाद का जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, सो दैट इज एक्चुअली अ बुलिश कैंडल। तो ये कंफर्म हो रहा है कि वे 3 कैंडल्स मिला के, हम 3 कैंडल्स को जब देखते हैं तो एक एक स्टार पैटर्न बनता है, एक इस तरह का वी पैटर्न बनेगा। और वो वी पैटर्न में पहले नीचे की तरफ, बीच में एक पोजीशन बनेगी और फिर ऊपर की तरफ। तो ये जब पैटर्न बनेगा तो दैट इज एक्चुअली ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पैटर्न है मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है। 3 कैंडलस्टिक मिला के ये नेगेटिव रहा, ये 3 कैंडलस्टिक, सो 1, 2 एंड 3, ये नेगेटिव रहा। यहाँ पे इसने एक सॉर्ट ऑफ डोजी बनाई, हैमर भी बोल सकते हैं, एक छोटा हैमर है। और उसके बाद में फिर एक कैंडलस्टिक बनी जो ऊपर की तरफ बनी, भले रेड बनी लेकिन ऊपर की तरफ बनी, और बाद में उसने कंटिन्यू कर दिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि बुक्स में जैसा लिखा हुआ है, और ये लो जो है, ये जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया, उसके बाद में जितनी भी कैंडल्स बन रही धीरे धीरे ऊपर की तरफ बन रही। सो एक हमको दिख रहा है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, जब हम इस तरह की कैंडलस्टिक्स को ऑब्जर्व करेंगे, और पोजीशन भले हम यहाँ कहीं बनाएंगे, हो सकता है यहाँ पे या ये कैंडल पे पोजीशन बने हमारी, और ये कैंडल जो है, स्टॉप लॉस तो हमेशा हमारा ये जो इसका लो है वो रहेगा, या उसके भी थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली एग्जैक्टली लो रख के वी एक्चुअली गेट ट्रैप्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टॉप लॉस भी प्रॉपरली डिफाइन करें, हमारे रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा मैट्रिक्स है उसके हिसाब से। जब हम पोजीशन यहाँ कहीं बनाते हैं तो वहां से मार्केट ने जिस तरह से मूवमेंट दिया, कंसोलिडेट करके वापस एक ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दिया। सो आई थिंक दिस वाज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न, हमने एक्चुअली चार्ट पे भी ऑब्जर्व किया। विल मूव ऑन फर्दर विद द प्रेजेंटेशन, जस्ट अ मिनट। सो बुलिश मॉर्निंग स्टार ये जहां जहां पे बना है, जैसे यहाँ पे एक आपको डिपिक्शन दिख रहा है निफ्टी का ही, तो वहां वहां पे मार्केट ने पहले ऊपर किया, थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, लेकिन बाद में वापस उसका जो ट्रेंड था वो ऊपर बना के रखा। सो दिस इज हाउ इट इज मॉर्निंग स्टार। राइजिंग थ्री मेथड्स। सो अब हम आ रहे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न में। द राइजिंग थ्री मेथड इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न दैट अराइजेस ड्यूरिंग एन अपवर्ड ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड ऊपर है, और उसके बाद में ऐसा ऐसा समय आया कि मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेस, कि थोड़ा मार्केट ने कहीं पे भी मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं दिया, ग्रेजुअली उसने जो प्रॉफिट था, मान लीजिए हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक बड़ा कैंडल बनाया, बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई, और धीरे धीरे मार्केट 3 कैंडल्स नीचे की तरफ बने। मान लीजिए 15 मिनट के कैंडल है, तो एक एक 15 मिनट का कैंडल, बाद के 3 15 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर ये मार्केट ने जो मूवमेंट दिया था, मूवमेंट को ऑलमोस्ट निगेट करने के लिए आ गया मार्केट। लेकिन उसके बाद में वापस मार्केट ने
जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, और ये तीनों कैंडल्स, रादर ये चारों कैंडल्स के ऊपर जाके मार्केट ने बंद दिया। सो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है, नीचे वो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ऊपर जाते वक्त उतने ही जम से, उतने ही जोश से जा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली गिविंग यू अ सिग्नल दैट मार्केट इज स्ट्रांग। सो दिस इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न which is actually like rising three जिसको बोलेंगे, when market is in uptrend but shows a little correction of three small red candles and then form a big bullish green candle. So ये जहां जहां पे भी इस तरह से पैटर्न बने हैं, वहां पे हमको दिखा है कि भाई मार्केट ने, जैसे अब हम बात करें कोई बड़ा कैंडल हमारा ग्रीन बना, और उसके बाद में आई थिंक ये निफ्टी पे हमको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। रिलायंस ने बीच बीच में थोड़ा सा मूवमेंट, एब्रप्टली एकदम से मूवमेंट दिया हुआ है, लेकिन निफ्टी का मूवमेंट जो है मोर सूदिंग मूवमेंट है, स्विफ्ट मूवमेंट रहा है निफ्टी का। सो जस्ट अजय सर, आपको इसमें कुछ ऐड करने की इच्छा? नहीं, ठीक, अच्छा है, फाइन फाइन। सो फ्रॉम हियर आई थिंक राइजिंग थ्री हमको देखना है। राइजिंग थ्री में इसमें क्या है कि ये चार्ट्स और काफी कम फॉर्मेशन होते हैं इस टाइप का पैटर्न्स। हाँ, बिकॉज ये पैटर्न जब फॉर्म होंगे तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत, जिसको ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की आदत है वो रेगुलरली ऐसे पैटर्न्स, ऐसे कुछ पैटर्न्स में हमेशा ध्यान रखते हैं कि इस तरह के पैटर्न्स अगर हो रहे हैं, सो वो पैटर्न्स को देख के आराम से काम करें। जैसे ये तीन फॉलिंग कैंडल्स थे, लेकिन यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हुआ। ये हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, आर्ली चार्ट है, बहुत क्लियरली मॉर्निंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे कि एक डोजी बना, ये नीचे था, मार्केट का ट्रेंड तीन कैंडल बन गए, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, फिर यहाँ से मार्केट ने फिर से नीचे किया, तो मतलब ये जो हमारा मॉर्निंग स्टार जो बना था उसका जो लो था वो ब्रेक कर दिया, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर लेकिन यहाँ पे फिर से एक मॉर्निंग स्टार बना सॉर्ट ऑफ, और ये नीचे का ट्रेंड था, यहाँ पे एक डोजी बना, फिर एक बुलिश कैंडलस्टिक बना, और ग्रेजुअली उसने फिर यहाँ से कंटिन्यू किया। सो मार्केट आपको हमेशा ऐसा नहीं कि काम करने बहुत इजीली देगा। इट इट इज बाउंड टू हैपन कि चीजें मार्केट में ये होने के बाद में भी स्टॉप लॉसेस जाएंगे, बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड अ होली ग्रेल। को होली ग्रेल नहीं है, ट्रेडिंग इतनी आसान तो हो ही नहीं सकती, बट ऑब्वियसली आपको आपके रूल्स और आपके जो रिस्क रिवॉर्ड पैरामीटर्स है उसको बना के रखना पड़ेगा, सो दैट यू हैव एन एज एंड यू कैन ट्रेड बेटर। नाउ हमको दो कैंडलस्टिक यहाँ पे दिखे, ये तीसरा बन रहा है, लेकिन तीन कैंडलस्टिक्स राइजिंग थ्री, वो पैटर्न तो मुझे यहाँ पे फिलहाल ऑब्जर्व करते हुए नहीं दिख रहा है। एक एक्चुअली लाइव मार्केट में मैं जब देख रहा हूँ, भले आज मार्केट बंद है लेकिन ये लाइव चार्ट्स हैं, सो उसमें कहीं पे भी अभी तक इतने दिनों में तो इस तरह का पैटर्न बनते हुए नहीं दिखा। ये एक पैटर्न बना है, बट दिस इज अगेन लाइक वो मूवमेंट को उसने कंटिन्यू किया, यहाँ पे एनगल्फिंग जरूर हुआ है और लो पे हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली एनगल्फिंग, और उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर नीचे करके फिर ऊपर की तरफ रहा है। सो आई थिंक राइजिंग थ्री मिलना इतना आसान नहीं रहेगा, बट ऑल सेड एंड डन विल मूव फर्दर। सो दिस इज वन पैटर्न, और नॉर्मली ये निफ्टी आईटीसी में निकला है, आईटीसी में राइजिंग थ्री पैटर्न जो है, एंड दिस इज हैपेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर समवेयर, कि मार्केट ने एक दिन पूरा, ये एंड ऑफ द डे चार्ट है, मार्केट ने अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया, फिर 3 दिन मार्केट ने फॉल दिया। तो ये देखिए डेली चार्ट पे मतलब हमने ये स्पॉट करके रखा था यहाँ पे, तो डेली चार्ट पे अगर किसी ने स्पॉट किया होता इस तरह पैटर्न बना है, और बाद में पूरा कवर करके उसने ऊपर बंद किया, तो आईटीसी ने ऊपर की तरफ फिर मूवमेंट दी, लेकिन एक लेवल पे बाद में वापस नीचे की तरफ आया, लेकिन मूवमेंट जरूर दी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि मार्केट मूवमेंट जो है अपने दिशा में, जो हम सोच रहे हैं वो दिशा में मार्केट मूवमेंट डेफिनेटली देता है। नेक्स्ट बात करें अप साइड टासो की गैप। So upside Tasuki gap is a 3 bar candlestick formation that signals the continuation of current uptrend. So again, it can be an indication of gap filling process after a downtrend when market has already reversed. It will create some gap in a chart in next day. Then after that, red candle will follow, will fill the gap, and uptrend will again continue from the very next day. So basically हुआ ये कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, कंटिन्यूअसली ऊपर ही था, बीच में गैप्स बन रही थी क्योंकि मार्केट गैप अप्स दे रहा था। तो गैप अप्स अगर चल रही है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप है। यहाँ पे जब मार्केट बंद हुआ, वहां से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन ओपन हुआ, लेकिन ऊपर हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ था। उसके बाद के दिन में ऐसा हुआ कि एक रेड कैंडल बन रहा है, और वो जो गैप है उसको फिल कर दिया उसने।
गैप पूरा फिल कर दिया, उसके बाद में वापस मार्केट ने ऊपर की तरफ फिर से मोमेंटम चालू रखा। सो गैप्स जो है मार्केट में, जब गैप बनती है तो ये जो गैप्स है उसको फिल करने के लिए मार्केट आता है, बिकॉज गैप्स मार्केट में बहुत समय तक रहती नहीं है। तो ये गैप्स वाला जो किस्सा है वो तो हम निफ्टी में बहुत बार देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे गैप है, दिस इज एक्चुअली एन आर्ली चार्ट। ये डेट है 9 मार्च का 2023, और उसके बाद में 10 मार्च मार्केट ने एकदम से गैप डाउन दिया। तो गैप डाउन दिया, मार्केट उसके बाद में नीचे ही रहा। लेकिन अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको बड़े पीरियड पे देखते हैं, बड़े चार्ट पे, डेली चार्ट पे देखते हैं, तो थोड़ा सा इजीली देख पाएंगे। या हियर, तो हमको वो जो गैप है, कोई गैप आइडेंटिफाई करके देखना चाहिए। हाँ, ये गैप था यहाँ पे। सो ये है 9 मार्च का, और 10 मार्च को जो मैं देखा था अर्ली चार्ट पे गैप हुआ। फिर 11 मार्च को उसने क्या किया कि मार्केट ने सॉर्ट ऑफ ऊपर की तरफ कोशिश की जाने की। तो ये जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश की, एग्जैक्टली फिल नहीं कर पाया, लेकिन एक झटका ऊपर की तरफ दिया और फिर नीचे की तरफ उसका मोमेंटम कंटिन्यू रहा। सो एक ये तरह से ये बियरिश है, उल्टी साइड में है, और अब बुलिश साइड में ये वाला, कि देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना 29 मार्च को। ये कैंडल बनने के बाद में मार्केट ने नेक्स्ट जो मार्केट खुला 31 मार्च को, मार्केट खुला ऊपर ही खुला और ऊपर की तरफ ही चलना चालू हुआ। उसके बाद में नीचे मार्केट ने दिया, लेकिन बाद में उसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहा। तो अब कभी अगर ऐसा हुआ कि एक बड़ा कैंडल बन के ये गैप को फिल करने आ रहा है और गैप फिल करके वापस से मोमेंटम ऊपर की तरफ रख रहा है, सो इट इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न अपसाइड टासुकी गैप। सो इस तरह से मूवमेंट जो है वो बीच बीच में, क्योंकि गैप बना हुआ है तो गैप को फिल करने मार्केट आ सकता है। इट कैन कम एनी डे। गैप लेकिन बहुत नीचे की तरफ है अभी, तो अभी उसको वहां तक आने में थोड़ा समय लग सकता है। इट कैन नॉट कम इन वन डे, इट मे टेक सम टाइम, फिल द गैप, एंड देन मार्केट कैन अगेन गो अप। सो गैप फिलिंग जो है मार्केट नॉर्मली करने आता है, एंड दिस इज वन सच पैटर्न विच इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो यहाँ पे गैप बना था, ये जो गैप था यहाँ पे गैप बना था, उस गैप को अभी फिल करने अभी तक मार्केट नहीं आया है। दिस इज हैपेंड इन एलेम्बिक फार्मा, ये पर्टिकुलर स्टॉक नहीं आया है, लेकिन गैप फिल करने जब भी आएगा फिल करके वापस ऊपर जा सकता है। सो आपको गैप्स को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी गैप बनती है तो गैप फिलिंग के लिए मार्केट जब कभी भी आएगा, वो आके उसका जो करंट जो ओवरऑल ट्रेंड है उसमें कंटिन्यू कर सकता है। मूविंग फर्दर, so I think we have completed the presentation. If there are more queries, we are ready to answer. Just a moment, I'll finish off the presentation. And we are, so there was one query, sir, एक query आया था, which is actually on VIX के ऊपर chat box में है, कि is at 1.5 years low. What should the option seller do as low VIX is not giving good premiums? ऑप्शन के ऊपर से क्वेरी है। ये नहीं, नॉर्मली क्या है कि जनरली बहुत सारे क्वेरी आते हैं, विक्स के ऊपर आता है, फिर बाकी दूसरे दूसरे बहुत सारे पॉइंट्स आता है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा ट्रेडिंग की पैटर्न है या जो मैं जो समझता हूँ, अगर टेक्निकली किसी बंदे को काम करना है मार्केट में, उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीजों को नहीं देखना है। सिर्फ अगर वो कैंडल और पैटर्न, अगर ये दो चीजों को देख लेता है तो बाकी मार्केट में इतने सारे चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, पिछले 7-8 साल जो एक्सपीरियंस है, मैंने यही गेन किया हूँ कि प्राइस एक्शन और उसका पैटर्न। पैटर्न मीन्स अगर दूसरी अगर आप लैंग्वेज में बोले, प्राइस एक्शन जो चीज है वो पैटर्न भी वही चीज है। और बाकी आपका वॉल्यूम है, विक्स है, बाकी जो बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट है, इस बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं। तो इस ये अगर आप देखें तो काम नहीं कर पाएंगे। जनरली जो विक्स वाला जो पार्ट है वो जनरली मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं विक्स का पैटर्न या चार्ट या उसका जो क्या वैल्यू चल रहा है मैं कभी भी नहीं देखता। सिंपली आई फॉलो प्राइस पैटर्न, प्राइस एक्शन या पैटर्न, बस ये दोनों वाला, तीसरा कुछ नहीं है। और मैक्स टू मैक्स फॉलो करते हैं स्टोकेस्टिक। ये तीन चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक मार्केट में अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो विक्स को मैं ज्यादा फोकस नहीं देता हूँ, भले ऑप्शन में काफी इंपोर्टेंस कैरी करता है, सब लोग कहते हैं, पर मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो इस बारे में थोड़ा सा व्यू में क्लियरली नहीं दे पाऊंगा, तो मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ। और जितेंद्र सर, अगर आपका कुछ व्यू इसके ऊपर है तो आप इसको दीजिए प्लीज। सर एक ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि नॉर्मली जब विक्स गिरा है तो मार्केट में वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए विक्स गिरा है। तो विक्स का रेलेवेंस वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो, और वोलेटिलिटी को मेजर करता है। तो समझ में ये आता है कि भाई अगर विक्स नीचे है मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, और मार्केट जो ट्रेंड में जा रहा है वही ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है। सो देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है।
ऑब्वियसली जो ऑप्शंस में काम कर रहा है उसको वोलेटिलिटी से ज्यादा प्यार है, क्योंकि जब वोलेटाइल हो जाता है तो प्रीमियम्स जो है ऑप्शन में, खास करके इंडेक्स के ऑप्शन में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन जब वोलेटिलिटी कम होती है उसके बाद में, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट में ऊपर नीचे मार्केट करेगा ही, और अभी जो वोलेटिलिटी कम हुई है क्योंकि मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन ये फिर से बढ़ने का चांस पूरा पूरा है। नॉर्मली ये देखने में आया, अगर विक्स का चार्ट में लगा के बैठा हूँ तो दिखेगा आपको कि विक्स के चार्ट में एक आई थिंक 10 का लेवल ऐसा है कि जो वोलेटिलिटी एकदम लो हो जाती है। विक्स 10 इज अ वेरी लाइक एकदम ही एकदम बोल सकते हैं कि म्यूटेड म्यूटेड वोलेटिलिटी है। और 10 के बाद से आपको देखिएगा वोलेटिलिटी फिर से वो लेवल पे आके रुकेगा और फिर वहां से फिर से वोलेटिलिटी पिक करना चालू करता है। और नॉर्मल केस में वोलेटिलिटी जो है 20 तक मैक्सिमम, अभी तो वो भी उतना भी नहीं जा रहा है, उससे भी कम हो रहा है। तो चार्ट को थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करके देखते हैं तो हमको दिखेगा कि 10 के लेवल पे वोलेटिलिटी आई, जब जब आई तो वहां से वापस बाउंस करना चालू किया, और फिर वापस वो 15 17 18 20 30 तक भी गया हुआ है। लेकिन 30 मतलब एकदम हाई वोलेटिलिटी होने लगती है। मार्केट में कोविड टाइम ऐसा था जब 70 80 80 85 की वोलेटिलिटी भी देखी हुई है। सो अगर आप इसको वीकली चार्ट पे लेके जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको और बड़े चार्ट में देखिए, मैं जो बोल रहा था कि बड़ी वोलेटिलिटी जो है वो ये मार्च 2020 का पीरियड है, जब ये वोलेटिलिटी वाज अराउंड लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी अराउंड 85, हाँ 85 87 का वोलेटिलिटी का इंडेक्स था। ये एक्सट्रीम हाई वोलेटिलिटी है। नॉर्मल वोलेटिलिटी जो रही है 25 से लेके 10। और 10 का लेवल जब जब आया है तो 10 के लेवल ये 9 साढ़े 9 दिख रहा है, मतलब 10 के आसपास का लेवल। ये एक सपोर्ट लेवल है जहां पे विक्स की सपोर्ट, मतलब विक्स के चार्ट पे भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ देख के प्लॉट कर सकते हैं। अभी विक्स का जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड है, वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम हुई है। इट इज ऑल बिकॉज कि मार्जिनिंग का जो नॉर्म्स है सेबी का चेंज हुआ है, मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है। ऑब्वियसली जब मार्जिन ज्यादा देना है, पैसा ज्यादा लगा के काम करना है, तो ट्रेडर्स जो एक्टिवनेस है ट्रेडर्स का वो कम हुआ है। जब ये ज्यादा था तब मार्जिन का भी पार्ट जो था वो कम था, तो कहीं ना कहीं मार्जिन कम देनी पड़ती थी, ज्यादा काम कर सकते थे लोग। अभी मार्जिन ज्यादा देनी पड़ती है और काम कम करने मिलता है, तो वोलेटिलिटी भी उसके हिसाब से। और ये एक्चुअली सभी का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि भाई ये सब चीजें करके कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी को घटाए। सो दैट इज द रीजन दिस इज एक्चुअली गोइंग इन अ डायरेक्शन वेर इन द सेबी वांटेड इट टू गो। सो दिस इज ये दिख रहा है। लेकिन 10 का लेवल ऐसा है कि जहां से फिर से वोलेटिलिटी आएगी। अब ऑप्शन सेलर्स की बात करें तो ऑप्शन सेलर्स को ऑब्वियसली अब इसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। दिस इज द मार्केट फंक्शन, जो मार्केट का नॉर्मल ट्रेंड फंक्शन है वो है। अब 10 के आसपास में, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब ये 12 के आसपास है, पौने 12 के आसपास है, 10 आएगा तो फिर से वोलेटिलिटी बढ़ेगी और आपको शायद उस टाइम पे प्रीमियम थोड़े बेटर मिल सकते हैं। तो आपको वेट करना चाहिए, और अभी आप कम प्रीमियम के साथ ही काम करो, छोटे मार्जिन में काम करो, बिकॉज कम प्रीमियम लेके बुक फटाफट करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द आंसर वुड बी। I hope we try to answer the question and to the best of our knowledge. इसमें Right, एक sir? चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें अगर कोई अगर ऑप्शन सेलर है पर प्रीमियम ज्यादा रहता है तो उसके लिए अच्छा है, यू कैन गेट ए गुड प्रीमियम। हाँ, लेकिन सर वो प्रीमियम जो मिलेंगे ना, जो मतलब वो जो पूछ रहे हैं, जो मुझे समझ में आया कि जैसे अभी आज अभी निफ्टी चल रहा है 17,600 के आसपास, तो 17,700 या 600 का भी एटीएम का या ओटीएम का प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। इवन मंथली ऑप्शंस में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बड़ा प्रीमियम नहीं है। हाँ, तो वो प्रीमियम कम है, और प्रीमियम कम होने का कारण ही वोलेटिलिटी कम होने की वजह से प्रीमियम कम है। सो ऑब्वियसली दैट इज इम्पैक्टिंग द प्रीमियम्स, एंड दैट इज द रीजन द क्वेश्चन हैज कम अप। एंड आई थिंक तो थोड़ा सा क्लैरिटी उनको मिला है, राइट? सो आई थिंक विद दिस वी शुड एंड द डिस्कशन बिकॉज वी ऑलरेडी क्रॉस 12 नाउ। And thank you so much everyone for joining on this Sunday morning. And we will continue these kind of sessions in near future. Rather, we'll be keep on trying to contribute and enhance our knowledge and our viewers' knowledge. Live session में जब लोग आते हैं पूछते हैं तो that is again a good sign. And we also get to have we actually get to see these kind of things live. तो थोड़ा सा उसमें भी हमको भी एक्सटेम्पोर देना पड़ता है, and which is again like enhancing our skills. So thank you so much for joining here, and we'll be posting this video very soon on the channel of our YouTube channel. And with this, we wish to conclude. Right? I'm just stopping the screen share. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you.